Hello class, welcome back. Welcome back to your computer class. So kids, in the last class we have completed our first chapter and now we have to do this second chapter that is computer languages, and we have already done we have already done few questions based on this computer languages, not question but some topics we have already covered, but yeah, fine, let us start it again. So this chapter is about the computer languages. Okay, fine. Now, so computer languages, then we are having categories of programming languages, low level languages, high level languages, processor, computer languages. ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी. Now, let us start from the computer languages. Now, what are the computer languages? So, a computer language is what? It's a special language understood by the computer. It's what? It is the special language understood by the computer only, right? अब जैसे कम हम एक दूसरे से बात करते हैं, सो विद द हेल्प ऑफ वी डू दैट विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज. सिमिलरली व्हाट हैपन कि कंप्यूटर में क्या होती है, ये चीज कंप्यूटर में ये चीज होती है कंप्यूटर लैंग्वेज की हेल्प से. कंप्यूटर लैंग्वेज अपने हेल्प. ओके नाउ. So, computer language is what? It's a special language and understood by the computers. It consists of a set of words, symbol, codes that is used to write a computer program. It is used to write the computer programs. A program, and now what is a program? So, a program is a set of instruction given to a computer to get a particular task done. ठीक है, a program is what? It's a set of instruction. And what about the set of instruction? That given to a computer to get the particular task done. ठीक है, तो कंप्यूटर लैंग्वेज जैसे भाषा, लैंग्वेज मीन्स क्या? भाषा मीन्स लैंग्वेज की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? लैंग्वेज की जरूरत हमें पड़ती है अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए. तो सिमिलरली कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक ऐसी लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी जहाँ पे हम अपनी बातों को कंप्यूटर तक पहुंचा सकें. ठीक है, तो कल इसके बारे में काफी सारी चीजें हमने देखा था. नाउ नाउ द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग. ये जो प्रोसेस है पूरा प्रोग्राम लिखने का, उसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट प्रोग्रामिंग. Now, the people who can write the programs are what? They are the programmer. The people who can write the program, they are termed as programmer. Just as human understand variety of spoken languages, computer cannot understand these languages. Computer understand only one language, that is the machine language. Computer सारी languages नहीं समझता, ये सिर्फ machine language को समझता है. ठीक है, ये सारी चीजें हमने कल डिस्कस किया था. अब जब हम बात करते हैं मशीन लैंग्वेज की, तो फिर हमें पता चला कि मशीन लैंग्वेज जो लैंग्वेज होती है, इट इज द लो लेवल ऑफ लैंग्वेज. ठीक है, और कंप्यूटर जो होता है वो सिर्फ ये लो लेवल लैंग्वेज ही समझता है. So computer use machine language to carry out their job. Computer what it does? It uses the machine language to carry out their job. This language uses the binary digits 0 and 1. तो ये लैंग्वेज क्या यूज करता है? बाइनरी डिजिट 0 and 1. बट इट इज डिफिकल्ट फॉर द प्रोग्रामर to write their program directly in terms of these digit. But it is difficult for the programmer, क्योंकि देखो खाली पूरी कोडिंग को 0 and 1 के टर्म्स में लिखना क्या हो सकता है? डिफिकल्ट हो सकता है. पूरी कोडिंग को सिर्फ 0 and 1 के टर्म्स में लिखना क्या हो सकता है? डिफिकल्ट हो सकता है. ठीक है ना, but it is difficult for the programmer to write their program directly in terms of 0 and 1. Therefore, some other computer languages has been developed in which writing programs is easier. इसीलिए कुछ और यूज किए गए लैंग्वेजेस यूज किए गए. ठीक है, जहाँ पे कंप्यूटर क्या हो, जहाँ पे प्रोग्रामर्स के लिए आसान हो यूज करना. ठीक है, now but it is difficult for the programmer to write their program directly in terms of these digits.
सिर्फ 0 और 1 में प्रोग्राम्स को लिखना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है. सो व्हाट हैपेंड नाउ, therefore some other computer languages has been developed. तो इनको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना हो चाहिए, इन्होंने क्या किया, कई तरह की और कंप्यूटर लैंग्वेजेस का क्या हुआ, इजाद किया. कंप्यूटर लैंग्वेज और भी तरह की कंप्यूटर लैंग्वेजेस आई. नाउ some other computer languages has been developed in writing for making the programs easier. However, a computer cannot understand these languages. तो कंप्यूटर तो इन लैंग्वेजेस को डायरेक्टली नहीं समझ सकता है ना, कंप्यूटर इन लैंग्वेजेस को नहीं समझ सकता. So some special software has also been developed. ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप हुए जो कि क्या करते थे, ट्रांसलेट करते हैं. ओके, नाउ मूविंग अहेड. नाउ क्लास, देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, जैसे कि जब आप किसी प्लेस पे विजिट करने जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, मतलब हम नहीं, जैसे कहीं फॉरेनर अगर इंडिया आ रहे हैं विजिट करने, तो अब वो फॉरेनर, उसकी लैंग्वेज है फ्रेंच, सपोज करो उसकी लैंग्वेज है फ्रेंच. ठीक है, वो जो फॉरेनर है उसकी क्या लैंग्वेज हम बता रहे हैं, उसकी लैंग्वेज हमने मानी कि उसकी लैंग्वेज फ्रेंच है. ठीक है ना, और आपको आती है हिंदी, आपको क्या आती है, हिंदी आती है. ठीक है, आपको हिंदी आती है, वो फ्रेंच बोलता है, आपको हिंदी आती है. तो अब आप दोनों के बीच में बात कैसे हो सकती है, मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि आप लोगों के बीच में बात पॉसिबल हो जाए. तो उसके लिए जो गाइड होते हैं, गाइड्स होते हैं, गाइड, और ये गाइड एक और चीज, क्या गाइड को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम ट्रांसलेटर ऑल्सो, है ना. दे व्हाट दे डू, दे दे ट्रांसलेट इट, दे ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन. ठीक है, मतलब हिंदी में आप उनसे कुछ बोल रहे हो या वो आपसे कुछ बोल रहे हैं, तो व्हाट दे डू, दे ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन. ठीक है, वो क्या करते हैं, वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करते हैं. ठीक है, तो सिमिलरली कंप्यूटर ने भी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स इजाद किए हैं जहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटर ने भी कुछ ऐसे चीजें इजाद की हैं जो कि जहाँ पे क्या होता है, ऐसी चीजें, ऐसी चीजें हुई हैं जहाँ पे हमारी लैंग्वेज कंप्यूटर क्या कर सकता है, समझ सकता है. ओके, नाउ मूविंग अहेड. ठीक है, तो ये बात हो गई कंप्यूटर और कंप्यूटर प्रोग्रामर्स की. फाइन, नाउ मूविंग अहेड, अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कैटेगरीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. देर आर नंबर्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल नाउ अडेज. अभी क्या है, नंबर्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है, अवेलेबल है. सम लैंग्वेजेस वर डेवलप फॉर द स्पेसिफिक कंप्यूटर्स. कुछ लैंग्वेज क्या है, स्पेसिफिक कंप्यूटर के लिए डेवलप की गई हैं. अदर वर डेवलप फॉर द स्पेसिफिक यूजेस सच एज द साइंटिफिक एंड बिजनेस एप्लीकेशन. साइंटिफिक या बिजनेस एप्लीकेशन के लिए कुछ और लैंग्वेजेस क्या की गई हैं, की गई हैं. Now programming language are classified into two major categories. Programming languages को कितनी categories में बांटा गया है, two major categories. Low level languages, ठीक है, ठीक है, लो लेवल लैंग्वेजेस में क्या आई, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज में क्या आया, प्रोसीजरल लैंग्वेज, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज एंड नेचुरल लैंग्वेज. ये तीन किस में आ गया, ये तीन आए हाई लेवल लैंग्वेजेस में. ठीक है, इतनी चीजें हमने अभी तक देखी. अब यहाँ पे ये एक चार्ट सा बना हुआ है जहाँ पे आपको बता रहे हैं कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस को कितने कितने पार्ट्स में बांटा गया है. ओके, नाउ क्लास मूविंग अहेड. नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, नेक्स्ट टॉपिक फॉर द डे इज लो लेवल लैंग्वेजेस. ओके,
नाउ लो लेवल लैंग्वेजेस के बारे में हम देख रहे थे। तो पहले ये जो चार्ट है अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो हमें क्या पता चलता है इस चार्ट से, दैट यहाँ पे सारी लैंग्वेजेस को क्या किया गया, कैटेगराइज किया गया। जैसे लो लेवल लैंग्वेजेस में हमें मशीन लैंग्वेज दिखी, असेंबली लैंग्वेज दिखी, है ना, एंड देन हाई लेवल लैंग्वेजेस में प्रोसीजरल लैंग्वेजेस, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस एंड नेचुरल लैंग्वेजेस दिखी। नाउ मशीन लैंग्वेज जो थी वो फिर बनी फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज एंड फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। ठीक है, वो ये सारी लैंग्वेजेस बनी। नाउ लो लेवल लैंग्वेजेस, लो लेवल लैंग्वेजेस आर रिटन टू रन अ पर्टिकुलर कंप्यूटर एंड कैनॉट बी इजली यूज्ड टू ऑन अदर कंप्यूटर। लो लेवल लैंग्वेजेस जो है वो किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर में, लो लेवल लैंग्वेजेस जो है रिटन टू रन ऑन अ पर्टिकुलर कंप्यूटर एंड कैनॉट बी इजली यूज्ड ऑन अदर कंप्यूटर। बाकी दूसरे कंप्यूटर्स में ये क्या नहीं हो सकते, ये यूज नहीं हो सकते हैं। Now, next is machine language. A machine language also called the first generation language. Machine language को हम क्या कहते हैं? We call machine language as a first generation language. ठीक है? Okay. और machine language को हम first generation language नहीं कहते. It's a language directly understood by the computer, and that too without any translation. ठीक है? It refers to zeros and ones. It refers to what? Zeros and ones that a computer can understand as instruction. Due to this reason, it is also called the low level. अब क्योंकि ये मशीन लैंग्वेज है, इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज़ जो मशीन लैंग्वेज में जो एक चीज़ होती है वो ये होती है कि ये जो होते हैं ये 0 एंड 1 के फॉर्म में लिख दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 0 एंड 1 के फॉर्म में जब ये लिखे जाते हैं तो due to this reason it is also called the low level language. Now next is limitation of machine language. अब देखो लो लेवल लैंग्वेजेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो अभी हमें देखना है कि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ द लो मशीन लैंग्वेज और द लो लेवल लैंग्वेज की लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं। नाउ machine language programs run only on the computer for which they have been developed. They are machine dependent. What about these programs? They are what? They are machine dependent. मशीन डिपेंडेंसी मीन्स क्या होता है, मतलब ये जिस कंप्यूटर के लिए बनाए जाते हैं they can be used only on that computer. Fine, they cannot be translated to other. Next is machine language programs are not portable to other computer. Machine language programs are not portable to what? Machine language programs are not portable to other computer. Fine. Next is assembly language. Assembly language, also called the second generation language, is a low level programming language. And assembly language uses letters, symbol instead of using one and zeros. A program written in assembly language uses short sequence of letter called the mnemonic code. असेंबली लैंग्वेज में क्या हुआ, ये सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज क्या आती है, अब ये थोड़ी स्मार्टनेस इन लैंग्वेजेस में आने लगी थे। तो व्हाट अबाउट दीज लैंग्वेजेस, मशीन लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो ये क्या यूज करते हैं, दे यूज द सीक्वेंस। यहाँ पे सीक्वेंस, दे यूजेस द सीक्वेंस, और सीक्वेंस को क्या कहते हैं, मेनीमोनिक कोड्स, लाइक ए फॉर एडिशन, सी फॉर कंपैरिजन, एल फॉर लोडिंग, एम फॉर मल्टीप्लाइंग, लाइक दिस। मतलब उन्होंने क्या किया, अब ये क्या करते थे, इस तरह के कोड्स का यूज करते थे, लाइक ए से एडिशन हो गया, सी फॉर कंपैरिजन हो गया, एल फॉर लोडिंग हो गया, एम फॉर मल्टीप्लाइंग एंड थिंग्स लाइक दिस। And these all things happens. Fine. Moving ahead. Assembly language is the source program which must be translated into the machine language before the computer can understand it. Assembly language is the source program which must be translated into what? In machine language before the computer can understand it. Computer उसको understand समझे उससे पहले, ठीक है। इन्हें ये क्या है, एक सोर्स प्रोग्राम होता है जिसको क्या करना होता है, ट्रांसलेट। अभी हमने बात की, हमने एक गाइड और फ्रेंच ऐसा करके हमने बात की, जहाँ पे हमने समझा कि कभी कभी क्या होता है, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू ट्रांसलेट द लैंग्वेज, सो दिस थिंग हैपेंस विद द हेल्प ऑफ इन कंप्यूटर ऑल्सो। कंप्यूटर में भी क्या होता है, ये चीज़ होती है, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे हम कोई कमांड कंप्यूटर को देते हैं
तो कंप्यूटर क्या करता है, उसको पहले ट्रांसलेट करता है, पहले वो ट्रांसलेटर के पास जाता है, उसके बाद फिर वो वापस आता है ना। मूविंग अहेड नाउ, अब यहाँ पे कुछ लिखा है, लेट अस रीड। An assembler is what? An assembler is a program used to translate. An assembler is a program, and it is used to translate assembly language into the machine language. It is used to translate the assembly language into the machine language. Assembler is used to translate the, किसको? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए कौन यूज होता है? असेंबलर। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल क्या है? मिनिमोनिक इज रिटन, ठीक है। देखो यहाँ पे है कि इनपुट किया और आउटपुट में हमें मशीन लैंग्वेज में आंसर मिला। So what is happening here? An assembler is what? It's a program used to translate assembly language into the machine language, so that, why so that कंप्यूटर क्या कर सके, कंप्यूटर उसे समझ सके। फाइन, इतनी चीजें समझ में आई। नाउ मूविंग अहेड, हाई लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट? हाई लेवल लैंग्वेजेस। Now we'll talk about the high level languages. So high level languages has instruction which are almost similar to the English languages used by us. High level languages में क्या होता है? High level languages has instruction which are almost similar to the English language used by us. इट इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली एंड रिजेंबल्स द लैंग्वेज दैट वी यूज़। मतलब देखो, इंग्लिश के बहुत करीब ये लैंग्वेज होती है। इसकी जो, तो होता क्या है, प्रोग्रामर्स को प्रोग्रामिंग करने में क्या होती है, आसानी होती है, क्योंकि ये जो लैंग्वेज होती है ये इनके बहुत करीब होती है, इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत करीब होती है। जो वर्ड्स या कोड्स ये यूज़ करती हैं बहुत हद तक सिमिलर होती है इंग्लिश लैंग्वेज में। Now high level language is what? It's a machine independent. Machine independent means अगर वो मेरे लैपटॉप में है तो वो आपके लैपटॉप में भी क्या हो सकता है, वर्क कर सकता है। If that is in my laptop, so it can work in your laptop as well. Fine. So this is about the high level languages. So high level language has what? It has instruction, and these instruction are what? These instruction are almost similar to the English language. These instruction are almost similar to the English language used by us. It is very user friendly and resembles the language that we use. Now, high level language is what? High level language is a machine independent. No. Now, moving ahead. Next is the greatest. Now, the next is the greatest advantage of this language is its independence. इसकी independence इसकी greatest advantage है. A program written in high level language can be used on almost all the computer, ठीक है। So the program that we write on the this language, that is high level language, वो that can be written in almost all the program, almost on the computer without any change. Now the next thing. Now the next two terms are there, that is interpreter and compiler. ठीक है, अगली जो चीजें जो यहाँ पे हैं वो क्या है? Interpreter and compiler. So interpreter and compiler are the two programs used to translate high level language into the machine language. Okay, these are the two programs which are used to translate the high level language into the program.
Now, moving ahead. Next is थ्री मेन कैटेगरीज. देखो अब यहाँ पे इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर की बात हुई. इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर क्या करते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज की जो चीज़ें होती हैं उनको वो क्या करते हैं? वो सिंपली उनको ट्रांसलेट करते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस में. ठीक है ना. अब जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको भी क्या किया? उसको भी थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. प्रोसीजरल लैंग्वेज, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज एंड नेचुरल लैंग्वेज. ठीक है, थ्री पार्ट में उनको भी डिवाइड कर दिया. Now, procedural language. Let us talk about the procedural language. ठीक है. So, procedural language is also called the third generation language. Procedural language को what we call? We also call it third generation language. ठीक है, procedural language को हम third generation language भी बोलते हैं. In this language, the programmer writes instruction that tells the computer what to accomplish and how to do it. This language uses English-like word to make it easy for the programmer to write. For example, बहुत simple है. अगर हमने add लिखा तो add का मीनिंग कुछ और नहीं. add का मीनिंग बस एडिशन ही होता है. print लिखा तो print का मतलब क्या हुआ? print हुआ. Many third generation language also use the arithmetic operator like asterisk. इस तरह के arithmetic operations का भी यूज वहाँ पे होने लगा है. फाइन. Okay class, so now the next thing is the procedural language is also called the source program. ठीक है, procedural language को हम और क्या बोलते हैं? We call it source program also. Fine. Now, the procedural language is also called the source program, which must be translated into the machine language. It must be translated into what? It must be translated into the machine language before the computer can understand it. A compiler or interpreter is a program which is used to perform the translation of the third generation language. तो ठीक है, third generation language मतलब इससे पहले कि कंप्यूटर समझे. What happens? कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करता है? उस प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है. फाइन. बेसिक. नाउ बेसिक, कोबोल, Pascal, Fortran are the example of what? These are the example of the third generation languages. Now see, let us read this. Do you know? Now, a computer programmer, often called a developer, creates and modifies computer program. ठीक है, they modify and they create what? Computer program. Now, the next thing, let us update your knowledge. The first programming language is designed to communicate instruction to a computer yeah, it were written in the 1950s. Okay. The first code and compiler was developed in 1952 for the Mark 1. Mark 1 computers के लिए सबसे पहला कोड और कंपाइलर को क्या किया गया था? डेवलप किया गया था. फाइन. The language Fortran was developed at IBM in the mid 1950. लैंग्वेज फॉर्टन कब डेवलप किया गया? मिड 1950 में. ठीक है. एंड बिकेम द फर्स्ट वाइडली यूज्ड हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. नाउ मूविंग अहेड. नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज. A non-procedural language is also called a fourth generation language. Fine. So a non-procedural language को हम क्या कहते हैं? We also call it a fourth generation language. In this language, the programmer only specifies what the program should accomplish without explaining. Okay, now. What do you mean by history? Okay, now moving ahead. So a non-procedural language is also called the fourth generation language. Now in this language, the programmer only specifies what the program should accomplish without explaining how.
it uses the English like statement. Fine, it uses what? It uses the English like statement. Now, when we are talking about the fourth generation languages, so we know that these are so easy to use that the users with very little programming background can develop programs using the fourth generation language. ठीक है? It is also a source program. अब देखो non procedural language जो होती हैं, they are also the source program. The example of these languages are Visual Basic, Oracle, Java, etc. ठीक है? Now next is natural language. A natural language, sometimes called the fifth generation language. It's a type of query language that allows the user to enter requests that resembles the human speech. ठीक है? It resembles what? The human speech. Natural languages are often associated with the expert system and artificial intelligence. Fine? Now, next is language processor. We will talk about it. Okay, fine. Okay, so the next thing that we have to discuss is language processors. So, a language processor is what? It's a software that converts source program into machine language. ठीक है? इतना हमने समझ में आया. Now class, एक चीज और जो हमने आपको बताई है वो ये कि जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उनको ट्रांसलेट करने के लिए वी नीड कन्वर्टर्स. सो जो ये लैंग्वेज प्रोसेसर्स होते हैं, सो व्हाट हैपन, लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होते हैं? इट कन्वर्ट्स द सोर्स प्रोग्राम इनटू द मशीन लैंग्वेज. क्योंकि देखो कंप्यूटर और कुछ नहीं समझता, कंप्यूटर सिर्फ क्या समझता? कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली द मशीन लैंग्वेज. फाइन. Now compilers and interpreter are what? These are the examples of the language processors. Compiler and interpreter are what? They are the language processors होते हैं. Compiler और interpreter का काम क्या होता है? They interpret the data, they convert the data. Okay. Now देखो अभी हमने क्या किया? Language processor समझा. अब now we are going to see the after understanding this the language processor, we have to read about the compilers and the interpreter. Now compiler. A compiler convert high level program into the machine language. What they do? They convert the high level program into what? Into the machine language. It converts the entire high level program into machine language at once and displays the error for the whole program. तो मतलब ये क्या करता है? इस पूरे पैराग्राफ ओके तो ये करता क्या है? ये मतलब सारे प्रोग्राम्स को एक साथ वो क्या करता है? पूरे प्रोग्राम को जितना एक पैराग्राफ है तो सबकी एरर जो होती है वो एक साथ बता देता है हमें. जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है? वो लाइन बाय लाइन एरर्स को बताता है. इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन क्या करता है? एरर्स को बताता है. फाइन. इतनी चीजें हमें समझ में आ गई. नाउ द नेक्स्ट थिंग. नाउ आफ्टर दिस, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया. अब जो अगली चीज हमने करनी है वो कौन सी है? अब इसके बाद अगली चीज हमने कौन सी करनी है? कंपाइलर इंटरप्रेटर के बाद सम अदर हाई लेवल लैंग्वेजेस. सो वी हैव टू रीड अबाउट द सम अदर हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक बेसिक, लोगो, कोबल, फोर्टन, जावा. सो क्लास दिस इज इट फॉर टुडे. ठीक है, आज की क्लास में हमने इतना पढ़ा. अब बाकी का जो टॉपिक हमारा बच रहा है दैट वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, एंड देन वी विल ऑल्सो स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर आफ्टर स्टार्टिंग द नेक्स्ट चैप्टर. ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? अभी हमने आज इतनी रीडिंग की. अब बाकी की चीज़ें जो बचती हैं दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास. एंड यू हैव टू रिवाइज योर होल सिलेबस फॉर योर द एनुअल एग्जामिनेशन. एनुअल एग्जामिनेशन के लिए आपने क्या करना है? आपने पूरे सारी सिलेबस को क्या करना है? आपने रिवाइज करना है. फाइन. सो क्लास दिस इज इट फॉर टुडे एंड नाउ मैम विल मीट यू in the next class.